سے برکت پائی ہے, میں نے بہت برکت پائی ہے. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور چند لمحے اور کھڑے ہوں گے. ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ تلاوت کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم کلام میں تلاوت کریں, اپنے پڑوسی سے کہیں گے آپ بہت اچھے تیار ہو کے آئیں. سب نے نہیں کہا. آپ ان پڑوسی سے کہیں گے آپ بہت اچھے تیار ہو کر آئیں. اور اب بولیں گے جیزس لوز یو. جیزس, اب ہاتھ ملائیں گے. جیزس لوز یو. ماما جیزس لوز یو. ہاں جی, اسمائل کرتے ہوئے جیزس لوز یو. ہاللیلویا. خداوند یسوع آپ سے پیار کرتے ہیں. تھینک یو. ہاللیلویا. آئیے کلام مقدس میں سے میرے ساتھ نکالیے گا میکا کی کتاب پرانے عہد نامہ میں سے. یہ جب آپ متی سے پیچھے آئیں گے تو حبقوق نحوم کے پیچھے ہے اور اموس کے یہ آگے ہے. میکا کی کتاب اور اس کا باب نمبر 7 نکالیے گا اور اس کی ہم ایک ہی آیت کا مطالعہ کریں گے. اور آیت نمبر 8 ہے میکا کی کتاب اور اس کا 7واں باب اور اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے. جو کسی نے نکالی ہو, جس کسی نے نکالی ہو وہ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے. اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو. خداوند کے کلام میں لکھا ہے اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو, کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا. کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا. جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا. آمین. جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا. یہ میرے ساتھ ہی آیت پڑھیے گا. کہیے گا اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو, کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا. جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا. آمین. سب بولیں گے آمین. تشریف رکھیے گا. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس زندہ اور موت پر اور پاک کلام کے لیے جو آج ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا ہے اور اسے ہم سیکھنے والے ہیں مل کر. خداوند کی زندہ اس کی 8ویں آیت کا مطالعہ کیا ہے اور یہ بڑا خاص چیپٹر ہے جس میں خداوند کا خادم, خداوند کا بیٹا میکا لکھتا ہوا دلیری کی باتیں کرتا ہے. کس کی باتیں کرتا ہے؟ دلیری کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو, کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا. خاص طور پر میکا اپنے دشمن کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں گر تو سکتا ہوں پر میں اٹھ جاؤں گا. اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو. آپ اور میں جب مسیحی زندگی میں یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, توبہ یافتہ ہوتے ہیں, برگزیدہ ہوتے ہیں, بلائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہماری زندگی میں بار ایسے موقع آتے ہیں کہ جب ہم اس جسم میں رہتے ہوئے گر جاتے ہیں. ہم ابلیس کا جو ہمارا دشمن ہے اس کے ٹریپ میں ہم آ جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے, کسی نہ کسی حالات کے سبب سے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم گر جاتے ہیں. ہم اپنے روحانی سٹیٹس سے گر جاتے ہیں, ہم اپنی روحانی زندگی سے گر جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بار ہم جسمانی طور پر بھی گر جاتے ہیں. اپنے آپ کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں, معاشرے کی نظر میں, اپنے خاندان کی نظر میں, والدین کی نظر میں, اور سب سے بڑھ کر خدا کی نظر میں. جب ہم گر جاتے ہیں اس بدن میں رہتے ہوئے, جب تک چلا وطن گھر کو نہیں لوٹتا, ہماری مسلسل ایک جنگ ہے. ہاللیلویا. ہم اس بدن میں رہتے ہوئے
बहुत बार पालूस रसूल कहते हैं मैं नेकी का इरादा करता हूं पर मुझसे बदी या गुनाह हो जाता है या मुझसे मिस्टेक हो जाती। खुदावंद का असीम खादम है और बहुत सारी कलीसियाओं को खड़ा करने वाला है, हालेलुया। और बहुत बार वो इस बात को सिखाता है कलीसिया को और हम सब को कि मैं इरादा ये करता हूं कि मैं बेहतर कर सकूं, मैं अच्छा बन सकूं, मैं रास्तबाज बन सकूं, मैं बरगजीदा हूं और मैं इस बात को कंटिन्यू कर सकूं। ऐसा ही है हम सब भी जो मसीह के चुने हुए लोग हैं, जिसके लिए यीशु ने अपना खून बहा दिया और एक ही बार हमारे गुनाहों का कफारा कर दिया। और हम खादम होते हैं, मुबशरा होते हैं, क्वायर में गाने वाले होते हैं, हम चर्च में अलग तरह की खिदमत करने वाले होते हैं और मसीह का प्रचार जो है दूसरों तक पहुंचाने वाले होते हैं। आपके भी बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं, आप में भी ऐसे बहन भाई हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं जो खुदा की अजीम खिदमत के लिए चुने गए। आपको खुदा जगह ब जगह लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा की आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी कॉलिंग है जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है। और मुल्क थाईलैंड में भी इन सब हालातों में होते हुए भी हम खुदा के हुजूर हैं और हम उसकी सिफारिश कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक्सीडेंटली नहीं है, खुदा की मर्जी के मुताबिक आप उसके घर में हैं। और जब आप उसके घर में आते हैं तो पहले उसकी मर्जी शामिल है। हमें बहुत सारे लोग आज मसीही जिंदगी में तौबा कर चुके होते हैं, रूल कुछ हासिल कर चुके होते हैं और खिदमत कर रहे होते हैं और एक ऐसा ट्रैप इब्लीस बुनता है, एक ऐसा जाल उनकी जिंदगी में उनके सबब से, उसके खानदान के किसी भी शख्स की वजह से, कम्युनिटी की वजह से, चर्च में होते हुए किसी भी वजह से वो ट्रैप में फंस जाता है। खादमीन ऐसे हो जाते हैं, कोई बेटी हो सकती है, कोई बेटा हो सकता है, कोई भी शख्स जो चुना हुआ है वो कहता है कि मैं गिर सकता हूं। इट्स नॉट अ बिग डील। हम खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए ऐसा नहीं है कि हम गुनाह से बच जाते हैं। गुनाह की माफी हो चुकी, मेरे पॉइंट को समझिएगा मेरे अजीजों। लेकिन बहुत बार इस दुनिया में रहते हुए हम किसी न किसी ट्रैप में गिर जाते हैं। लेकिन खुदावंद का बेटा दिलेरी देता है उन लोगों को जो चुने हुए हैं, जिनकी जिंदगी में खुदा की बहुत बड़ी कॉलिंग है। खुदा उन्हें ना सिर्फ थाईलैंड में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि कौमों में इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा उनको यहाँ पर तैयार कर रहा है। इस मुल्क में जब खुदा ने आपको वक्त दिया है तो वो आपको तैयार कर रहा है, जिसमें आप कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, रोजे रखते हैं, खुदा की ज़ुबान गिड़गिड़ा रहे हैं। खुदा की कॉलिंग बहुत बड़ी है आपकी जिंदगी। खुदा आपको बहुत सारी जानों को इब्लीस की किंगडम में से निकाल कर खुदा की बादशाहत में लाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपका गुनाह, आपकी गलती और जब आप गिरते हैं, आपकी वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। खुदा की ये मर्जी आपके लिए नहीं है कि आप गिरे हैं और आप गिरे ही रहें। आप किसी गलती के सबब से गिर जाते हैं, आपसे मिस्टेक हो जाती है, आपसे गुनाह हो जाता है और आप अपने अंदर पशेमान हो रहे हैं। कम्युनिटी क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा पादरी क्या कहेगा, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरा शौहर, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरा भाई क्या कहेगा। हम उस वक्त उस गुनाह से लड़ रहे होते हैं और ठीक उसी वक्त इब्लीस आप पर हमलावर होता है। पहले तो वो ट्रैप करता है, आपको बुनता है और आपकी रूहानी जिंदगी में आपको गिराना चाहता है, क्योंकि आप खुदा की बादशाहत के लिए बहुत अहम और जरूरी है। वो इब्लीस जो है आपके बारे में जानता है कि खुदा आपके लिए बहुत बड़ा प्लान रखता है, खुदा आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है। एक प्लान नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मकासद खुदा रखता है। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, हम गिर जाते हैं, हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमसे बदी हो जाती है, हमसे गुनाह हो जाता है और हम जो है उससे जूझ रहे होते हैं। हम उससे जूझ रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं कि मैं कैसे बाहर निकलूं। अब चर्च का क्या रोल होना चाहिए, कलीसिया का क्या रोल होना चाहिए, एल्डर्स का, डीकन्स का या मसीह बहन भाइयों का, पड़ोसियों का आपस में क्या रोल होना चाहिए कि वो जो गिर गया है, वो जो गलती में, मिस्टेक में गिर चुका है, वो कलीसिया से ऐसा गोया लग रहा है कि वो खारिज हो चुका है, वो बाहर जाने वाला है,
वो गिर चुका है, हमें उसे दिलासा देना है। पौलुस रसूल सिखाते हैं बेहिम्मतों को दिलासा दो, जो गिर चुके हैं उसको उठाओ। ये कलीसिया का फर्ज है, हम सब का भी। और मेरे अजीजों, अपनी कॉलिंग और अपनी डेस्टिनेशंस को पहचानिएगा। अगर आपसे कोई गलती मिस्टेक हो गई है तो आपकी वो डेस्टिनेशन नहीं है कि अब आप उसी गुनाह में जिंदगी बसर करें। नहीं, अगर खुदा चाहता कि आपको गुनाह में छोड़ दे तो वो कभी भी अपने बेटे को नहीं भेजता। आमीन। जैसे जिंदगी चल रही थी वो वैसे ही छोड़ देता। पहले कोशिशें कर रहा है कैसे मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को वापस ले आऊं। और खुदावन का बंदा मीका हमें दिलेरी देता है, कहता है मैं गिर सकता हूं, जब तक मैं इस बदन में हूं मैं किसी की बात का शिकार हो सकता हूं, मैं किसी भी बात में ट्रैप होकर गिर सकता हूं। पौलुस रसूल खुदावन का बड़ा अजीम खातम हुआ, वो भी लिखता है कि मैं इरादा कर लेता हूं पर मुझसे गलती हो जाती है। हमें फिर लिखा है इसी आयत के अगला हिस्सा में, जब अंधेरे में बैठूंगा तो खुदावन मेरा नूर होगा। खुदावन मेरा नूर होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया बोल सकते हैं? कौन नूर होगा? खुदावन तेरा नूर होगा। जब आप गिरेंगे तो बहुत बार अबलीस जो है वो तोहमत लगाता है, शरीर जो है वो आपको और ट्रैप करता है, वो और आपको नीचे धकेलता है, वो आपकी खिदमत के खिलाफ है, वो आपके खानदान के खिलाफ है, वो आपकी प्रस्तिश के खिलाफ है, वो आपके कलाम सुनाने के खिलाफ है, वो आपकी उस खिदमत के खिलाफ है जिसके लिए खुदा ने आपको चुना। हालेलुया। लेकिन खुदा का बंदा कहता है मैं अंधेरे में जा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझसे गलती हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक उम्मीद के साथ उस अंधेरे में बैठा हूं कि मेरा नूर कौन है? खुदावंद है। वो आएगा और वो मुझे बचाएगा। सदियों से लोग एक मसीहा की मखलसी देने वाले का इंतजार कर रहे थे, और जब मरियम के पास फरिश्ता आया, उसने कहा सलाम तुझ पर, क्योंकि तुझ पर फजल हुआ है। सलाम तुझ पर फजल हुआ है। वो डर गई और कहने लगी कैसा फजल है? फरिश्ता ने बताया ये वो फजल है कि जो रूह कुदस ने तुझ पर साया कर लिया है, और एक मुनज्जी इस दुनिया को दिया गया। हालेलुया। एक मुनज्जी इस दुनिया में पैदा होने वाला है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाने वाला है। हालेलुया। वो लोग जो गिर चुके हैं, वो लोग जो अंधेरे में हैं, जो दुख तकलीफ परेशानी और अबलीस के जबर की वजह से फंस चुके हैं, ट्रैप हो चुके हैं, मरियम पर फजल हुआ है। गोया पूरी दुनिया पर फजल हुआ है। हालेलुया। तमाम बनीनो इंसान पर फजल हुआ है, और वो नूर आपके और मेरे लिए चमका है। हालेलुया। अगर आप किसी ऐसी गलती या गुनाह के वसीला से ट्रैप हो चुके हैं तो गिरे मत रहिए, पड़े मत रहिए। खुदावन की मर्जी आपको बहाल करने की है। खुदा तो कहता है मेरे मंसूबे तेरे लिए सलामती के हैं, मांग मुझसे तो मैं तुझे कौमें दूंगा। मांग मुझसे तो मैं तुझे कौमें दूंगा, क्योंकि मेरा फजल बड़ा है, मेरा रहम बड़ा है। हमेशा जजमेंट से पहले खुदा रहम करता है, उसकी शफकत अबदी है, उसका प्यार निराला है। वो हमें बहाल करता है, वो हमें रिस्टोर करता है, जैसे उसने मरियम पर फजल किया और उसके वसीला से तमाम बनीनो आदम पर, तमाम खलक पर खुदावन ने रहम किया। हालेलुया। आपका अपना इरादा तो ये हो सकता है कि मैं गिर गया हूं, मैं बच जाऊं, वो उसकी तरह नैनमा के रास्ते चले गए थे खुदा के खादम यूना। थैंक यू। खुदा की खिदमत से भाग रहा है। खुदावन ने हुक्म दिया आस पास से तरसीस को जा, और नैनमा को जा, तरसीस को भाग गया। आप भी बहुत बार उस गलती में गिर जाते हैं, गुनाह में गिरने के सबब से खुदा की हुजूरी से भागना शुरू करते हैं। जिस तरह आदम को खुदा ने आवाज दी, आदम तू कहां है? पत्तियां चलो गया, मैं टेबल पीछे रोक जाना। आदम तू कहां है? मैं नजर आ रहा हूं आपको? नहीं, खुदा को भी आदम नजर नहीं आ रहा। वो आदम को ढूंढ रहा है। He was finding आदम।
पहले ठंडे वक्तों में बात किया करता है, रफाकत है आपस में, एक दूसरे से बातचीत किया करते हैं। खुदा ने हुक्मरान बनाया है, उस गार्डन का बादशाह बनाया है जो सब जानवरों के नाम रखता है, इख्तियार दिया है। हालेलुया। उसकी आइडेंटिटी में इख्तियार है, उसकी आइडेंटिटी में फजल पहले से है। वो इंटीमिस्टेशन में रहता है, खुदा के साथ यगानगत में रहता है। हालेलुया। जो ही गुनाह कर लिया, मिस्टेक हो गई है, खुदा का रूह मलामत कर रहा है। उसे पता चल गया कि हम नंगे हैं, हमसे गुनाह पहले वैसे ही रह रहे थे ना, किसी को नहीं पता था, शायद हमें भी ना पता होता। जैसे ही ट्रैप हुआ है ना, जैसे ही गलती हो गई, खुदा से छुपने लगे, खुदा से भागने लगे हैं, खुदा की हुजूरी से अपने आप को पत्तों में छुपा लिया। हालांकि छुप नहीं सकते। हम भी बहुत बार हमारी जिंदगी में खुदा की बहुत बड़ी कॉलिंग होती है। खुदा ने जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया, उन पर सजा का हुक्म, खुदा उनको सजायाब नहीं बनाना चाहता ना। खुदा की ये मर्जी है कि वो आपको सजा दे। गोया हम जब गिर जाते हैं, इंसान होते हुए सिचुएशन में गिरने के सबब से हम खुद ही सोच लेते हैं, ला भाई हूं नहीं मैं खिदमत कर सकता, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझसे ये गुनाह हो गया है, अब मैं खिदमत नहीं कर सकता। हम खुद ही अंदर घुटते रहते हैं और सोचते रहते हैं, इतनी मेहनत की थी, इन्ने रोजे रखे सन, खुदाया इन्नियां दुआवां कीतियां सन, ऐसी हो गया। उसी वक्त इब्लीस जो है ठीक चोट लगाता है। जो बैटलफील्ड आपके दिमाग में चल रही होती है, उसी वक्त इब्लीस हमला करता है और वो कहता है यही ठीक वक्त है, मैं इससे खुदा की हुजूरी से बाहर ले जाऊं। हवा के पास भी वो बार बार आता था, वो एक दिन नहीं आया। He was looking, he was finding कि किस वक्त ये अकेले ही मिले और मैं हमला करूं, किस वक्त मुझे मौका मिले तो मैं हमला करूं। जैसे ही आदम हवा से दूर होता है, अपने काम गया होना, किधर खेल रहा होना, शेर ना हाथी ना झूले लै रहा होना है। इख्तियार था उसे, खेलता था, बातें करता था, सब उसके इख्तियार में थे। हवा को अकेला पाते ही इब्लीस ने अटैक किया। मेरे जिसको बहुत बार ऐसा होता है कि हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो अंदरूनी मलामत भी हो सकती है जो खुदा का रूह आपको करता है गलती के सबब से। खुदा के कलाम में लिखा है, सादिक गिरता है और फिर सादिक गिरता है। मेरे चाचू का बेटा मुझे कहने लगा, भाई आदि ये सादिक कौन? वो समझता था जैसे किसी का नाम नहीं है सादिक, तो ये किसी सादिक भाई की बात कर रहे हैं या किसी शख्स की बात कर रहे हैं। मैंने उसे कहा, ये वो सादिक है जो रास्तबाज है, जो सदाकत की राह पर चलता है। और यीशु ने कहा, राह को जिंदगी मैं हूं। ये वो शख्स है जो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है, जो यीशु के साथ उसकी राहों पर चलता है। हाँ, वो गिर सकता है। 7 बार सादिक गिरता है दिन में। उससे गलती हो सकती है, उससे गुनाह हो सकता है। और बड़ी बात ये नहीं है कि आप गिर जाते हैं, बड़ी बात ये नहीं है कि आप गिर जाते हैं, बड़ी बात ये है कि आप गिर के उठते हैं। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। बड़ी बात ये है कि आप गिर के उठ जाते हैं। सादिक 7 बार गिरता और फिर उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर गिरा ही रहता है। हम भी बहुत बार इब्लीस हमें शरीर की लिस्ट में लेकर जाना चाहता है। अजीजों, अब शरीर नहीं है, ना ही खुदा की ये मर्जी है आपके लिए। हालेलुया। एक शख्स की कहानी मुझे याद आ गई है। इमाल 20 बाब में चलते हैं, मेरे साथ चलेगा। इमाल 20 बाब में एक वाकया पेश आया है। खुदावन का बंदा कलाम सुना रहा है, जल्दी से निकालिएगा। एक शख्स की कहानी पढ़ते हैं। इमाल की किताब 20वां बाब है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत का मुतालिया करते हैं मेरे से। खुदावन आपके लिए बड़े बड़े खुदावन आपके लिए बड़े बड़े मंसूबे रखता है, लेकिन बहुत बार होता क्या है। 20 बाब की 9वीं आयत देखेंगे। जिस किसी ने निकाल लिया हो वो पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा। 20वां बाब इमाल की किताब है और उसकी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत का मुतालिया करते हैं। हालेलुया। खुदावन के जिंदा कलाम में लिखा है,
اور यूतखस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था. कहां पर बैठा था? खिड़की में बैठा था. खुदावंद का बंदा पालूस रसूल जो है एक चर्च में कलाम सुना रहा है. होम चर्चेस हुआ करते थे, कलीसिया बढ़ रही है और लोग इज्तिमाई या तौर पर जमा हैं और खुदा का कलाम सुन रहे हैं. चल क्या रहा है? चर्च गिरजा लगा हुआ है. ओके, और आज वो खिड़की में बैठा है. उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पालूस ज्यादा देर तक बातें करता रहा, वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो क्या था? मुर्दा था. तीसरी मंजिल पर बैठा हुआ है. एक लात चर्च में तो दूसरी बाहर है. चर्च गिरजा अंदर लगा हुआ है और वो इस तरह से बैठा हुआ है जैसे हम बाइक पर कभी बैठते हैं. एक टांग इस तरफ है और एक टांग इस तरफ है. एक हिस्सा उसका चर्च में है और एक हिस्सा दुनिया में है. ओके, और पालूस रसूल कलाम सुना रहे हैं और उससे भी कलाम सुनने का बहुत ज्यादा शौक है और वो कलाम सुन रहा है और वो खिदमत में आगे बढ़ना चाहता है. और कलाम सुनते सुनते उस पर नींद का क्या आया है? गलबा आया और तीसरी मंजिल तो जा गया. तीसरी मंजिल से गिर पड़ा है क्योंकि उसकी जो बाहर वाला हिस्सा था, जो चर्च से बाहर वाली कलीसिया से बाहर वाला हिस्सा था, जब आप दुनिया में होते हैं, जब आप चर्च से बाहर होते हैं, वो वाले हिस्से में जब आप गिर जाते हैं तो गोया मालूम हुआ है कि वो मुर्दा है. जब उठाया गया तो मुर्दा है. बहुत बार आप भी जब चर्च से बाहर होते हैं, खुदा की कलीसिया से बाहर होते हैं, खुदा की हुजूरी से बाहर होते हैं, तो गिरने के सबब से ऐसा लगता है कि आपकी रूहानी मौत हो गई है. तो इसकी तो जिस्मानी मौत भी गोया नजर आ रही है. एक खादम का रवैया देखिएगा यहाँ पे. खुदावंद का खादम जैसे ही उसे पता चला है कि मेरी कलीसिया का बंदा, मेरा भाई जो है वो गिर गया है. इसी तरह आपकी जिंदगी में भी बहुत सारे गुनाह हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं. आप अपनी उस कॉलिंग से क्या होते हैं? गोया गिर जाते हैं जो खुदा आपकी जिंदगी में रखता है. चर्च लगा हुआ है, खुदा का बंदा कलाम सुना रहा है. वो हमारे जैसा, उससे भी बड़ा जोश था खुदा का कलाम सुनाने का और वो सुनाता जा रहा है. बातें हो रही हैं, कलीसिया बढ़ाई जा रही है, पालूस रसूल सिखाते जा रहे हैं. लोग नोट्स लेकर लिख रहे होंगे, लोग उस वक्त उसकी बातों को जो है वो अपनी कॉपीज में लिख रहे होंगे. जो कुछ उनके पास है वो अपने जहन में रिकॉर्ड कर रहे होंगे कि ये बातें मेरे काम आएंगी. जो ही ये शख्स पर नींद का गलबा आया है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत बार दुनिया की ऐसी चीजों का गलबा हम पर आ जाता है जिसमें हम गिर जाते हैं. चीजों हम गिर जाते हैं, हम ट्रैप हो जाते हैं. और जैसे ही ये गिरा है तो गोया मुर्दा हालत में पाया गया है. अगली आयत के हिस्सा में लिखा है, पालूस उतर कर उससे क्या हुआ? पालूस उतर कर उससे खुदा का खादम है. उसका रवैया देखते हैं. उसे पता चला है खुदा जिनको मैं कलाम सुना रहा था उनमें से कोई शख्स जो है वो बदी में, गुनाह में, या वो चर्च में जो उसका एक बार वाला हिस्सा था उसके सबब से वो ट्रैप होके गिर गया. खुदा के खादम ने लगा हुआ चर्च छोड़ा है, लोगों को वहीं छोड़ा है. and he's run away from him. For him, वो उसके लिए भागा है, तीसरी मंजिल से उतरा है और उससे जाकर लिपट गया है. मेरे अजीजों, उसको हक करने लगा है, उसको इस बात का एहसास दिलाने लगा है कि तू अकेला नहीं है. तेरे जो ड्रीम्स हैं, तू जो खुदा की खिदमत के लिए यहाँ पर बैठा कलाम सुनता है, जो ट्रेनिंग्स ले रहा है, तू अकेला नहीं है. खुदा ने मुझे अगर मुकर्रर किया है तो मैं तेरे पास आया और उसने उसे हक कर लिया. सब कह रहे गोया ये मर गया है. ख्वार में से कोई कह रहा है इसने बदी कर ली, अब ये खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, इसने गुनाह कर लिया. और हो सकता है साथ में कलीसिया के कोई लोग जो जिन्होंने उसे मुर्दा पाया, उसने कहा ये मर गया, अब ये जी नहीं सकता, इसके ड्रीम्स मर गए, इसका वो मकसद फौत हो चुका है जिसके लिए ये कलाम सुन रहा था. हालेलुया. और पालूस रसूल का रवैया देखिएगा. पालूस उतर कर उससे निपट गया और गले लगा कर कहा, घबराओ नहीं. हाँ, गिर सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती है, गलती हो सकती है, गुनाह भी बाजुकात हमसे हो जाता है. बड़ी बात क्या है? गिरे रहे,
पड़े रहें, ट्रैप हो जाएं, लोगों की बातों से डर जाएं, खानदान की बातों से डर जाएं, माशरे की बातों से डर जाएं, तोहमत लगाने वालों से डर जाएं कि अब ये खिदमत के लायक नहीं है। खुदा के लोगों का क्या रवैया होता है? वो जाकर गले लगाते हैं, हालेलुया, वो बात को समेटने की कोशिश करते हैं। उसने कहा तेरे ड्रीम्स मरे नहीं। बड़ी खूबसूरत बात पालूस रसूल ने की, पहले उससे गले लगाया। क्या किया है? इसी तरह खुदा ने भी तमाम बनीनो इंसान को खुदा यीशु मसीह के वसीला से गले लगाया, बचा लिया है, रिस्टोर किया, हालेलुया। और पालूस रसूल भी जब गया तो उसने कहा घबराओ नहीं, घबराना नहीं, कोई बात नहीं, तू गिर गया तो क्या हुआ। अगर वो अंदर की तरफ डिग जाता तीसरी मंजिल से, शायद उन्हें सट ना लगती और सारे चुप लेना सी फटाफट, क्योंकि नेड़े सन कलीसिया बैठी सी, चर्च लगा सी, उन्हें फड़ लेना सी फटाफट, भाई रात की हो गए, पानी पी है। लेकिन वो बाहर गिर गया है, वो दुनिया में गिर गया है, वो कलीसिया से बाहर है। और सारे ने क्या है, शौक नहीं है खुदा की खिदमत करने, हाँ, ये नहीं बदल सकता, ये खुदा का काम नहीं कर सकता, सोन बातें की होंगी। खुदा के खादम ने उससे लपेट लिया है, अपनी बाहों में उससे लेकर ये बात का एहसास दिलाया, मेरे बेटे तू अकेला नहीं है और घबराओ नहीं। और उसके बाद क्या लिखा, कोई पढ़ने में रहनुमाई कीजिएगा, हालेलुया। 11वीं आयत, फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी। ना इसकी अगली आयत कैसे, घबराओ ना, इसमें जान है, इसमें जान है, ये खुदा की खिदमत कर सकता है, हालेलुया। इसका भी कफारा यीशु मसीह ने दिया हुआ है, ये भी बचाया गया है यीशु पर ईमान लाने के वसीला से, हालेलुया। इसमें जान है, अभी भी इसकी खिदमत का जज्बा इसमें है जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। खुदा का खादम कह रहा है इसमें जान है, अभी भी ये रूहों को बचाने के लिए इसमें दिलेरी है जो इस वक्त तुम्हें गिरने के सबब से नजर नहीं आ रहे। जो तस्वीर का रुख तुम देख रहे हो, मैं उसे नहीं देख रहा। तुम्हें लग रहा है ये मर गया है, तुम्हें लग रहा है ये खुदा की खिदमत नहीं कर सकता, तुम्हें लग रहा है ये बहाल नहीं हो सकता, लेकिन मैं बताता हूं कि ये बहाल हो सकता है। इसमें जान बाकी है, सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसमें जान, सब बोलेंगे इसमें जान बाकी है, बजाय इसकी हम बोलेंगे मुझ में जान बाकी है। कोई भी नहीं कह रहे मुझ में जान बाकी है, जोर से मेरे पीछे बोल दीजिएगा, मुझ में जान बाकी है, हालेलुया। मेरा ड्रीम अभी भी मुझ में जिंदा है, खुदा की खिदमत करने के लिए वो जज्बा मुझ में जिंदा है। मैं लोगों को बचाने के लिए वो जो खुदा का मंसूबा है वो अभी तक मुझ में जिंदा है। मैं दुनिया में गिरने के सबब से गोया लोगों को मालूम ये होता है कि मैं मर चुका हूं, मुझ में जान बाकी नहीं रही। लोगों ने मुझे टैक्स डिक्लेयर कर दिया है, ही इज डाइड ऑलरेडी। उन्होंने कहा ये मुर्दा है, फिजिकली तौर पर उसे मुर्दा करार दे दिया। हम रूहानी तौर पर लोगों को मुर्दा करार दे देते हैं। खुदा के खादम का जाविया देखिएगा, वो आया, उसने उसे गले लगाया, उसने कहा इसमें जान बाकी है, हालेलुया। फिर क्या हुआ, अगली आयत पढ़िए। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि भूख हट गई, हालेलुया। इसमें जान बाकी है, और उसे घर नहीं भेजा, उसे वापस ले गया। रोटी थोड़ी है, ईसाई रुबानी में शरीक किया है, कलीसिया का हिस्सा बनाया है, उसे निकाल नहीं दिया, हालेलुया। मेरे अजीजों, पर आज आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा मौका है, आपकी जिंदगी में आपको लगता है कि आपकी गलती के सबब से, आपकी मिस्टेक के सबब से, आपके गुनाह के सबब से आप गिर चुके हैं और आपका मंसूबा जो है वो गोया मुर्दा लगता है, पर ऐसा नहीं है। आप में जान बाकी है, हालेलुया। आप में हिम्मत बाकी है, आप में जज्बा बाकी है। आप खुदा की खिदमत करने के लिए अभी भी खुदा की हजूरी में उसके लिए जान रखते हैं, हालेलुया। अभी भी खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको लोगों तक पहुंचाना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में अपने फजल को कभी भी नहीं निकालता, हालेलुया। किस किस को मुसरफ बेटे की कहानी याद? बेटा था, हालेलुया, अपने बाप से सब कुछ ले लिया है,
मिरास भी ले लिए, उसका जो हिस्सा आता है अपने बिना कर गया, अबा दे दे नहीं तो कोर्ट च केस कर देंगे। करते हैं ना ऐसा, भाइयों से लड़ाई हो मेरा हिस्सा दे, वो कहता अभी नहीं है, नहीं देना, नहीं दे सकता, कोर्ट से मिलने। भाई बैठ के बात करते, नहीं तेनू मैं कोर्ट ही मिलना है। अपना हिस्सा लेने के लिए अपना हिस्सा लेकर दूसरी जगह चला गया, दूसरे शहर में चला गया, ट्रैप हो चुका है। और जब उसे होश आए, हालेलुया, उसे क्या आया? जब पैसा खत्म हो गया, ऐशो इशरत खत्म हो गई है, वो जो दुनिया के कामों में गिर के ट्रैप हो चुका है, हालेलुया, अब उसे एक वक्त पे सूरों के पास काम करने के लिए छोड़ा और उसे सूर भी खाने नहीं दे रहे। भूख बहुत लगी है, भूखा है, परेशान, कुन हालत, ऐसा सोच रहा है। फौरन से उसे जब वक्त का बहुत जाया हो, अपनी जिंदगी में उसे याद आया कि मेरे बाप के घर में तो नौकर जो है वो ज्यादा अच्छा खाना खाते, फरात से उन्हें रोटी मिलती है। He was get back into his senses. उसने कहा मुझ में जान, मुझ में जान। उसका मकसद उसे याद आया कि मेरा मकसद अभी है, मुझ में जान बाकी है। इसे तो पालूस रसूल बताने के लिए आया, वो अकेला है, उसे कोई बता नहीं रहा। उससे खुद रियलाइज हुआ है, उसने वो पास को याद किया जब वो खुदा की हुजूरी में जोरदार प्रस्तिश किया करता था, कलाम सुनाया करता था, वो रूहों के खिलाफ खड़ा होकर खुदा की मनादी किया करता था, रूहों को बचाकर खुदा की किंगडम में लाया करता था। उसे याद आया है कि मैं तो अपने बाप के घर में बादशाह था, हालेलुया, मैं अपने बाप के घर में क्या था? बादशाह था। जैसे ही he was back into his senses, उसने इरादा कर लिया, हालेलुया, उसने इरादा कर लिया कि मैं आज ही अपने बाप के घर में क्या करूंगा? जाऊंगा, मैं वापस जाऊंगा। मैं गिर तो गया हूं पर मैं उठ जाऊंगा, हालेलुया, मैं तो गिर सकता हूं पर मैं बैक टू सेंसेस हुआ हूं, मैं खड़ा हूंगा। इरादा करता है, सोचता है, इमेजिन करता है। उसे वो वक्त याद आता है जब वो तख्त पर बिठाया जाता था, जब उसे अंगूठी पहनाई जाती थी, अच्छा लिबास पहनाया जाता था, उसके लिए ज़ियाफत की जाती थी। He was back into senses. वो खुदा की हुजूरी का तजर्बा वापस लेता है। उसे वो वक्त याद आता है कि मेरे बाप के घर में मुझे किस तरह इज्जत दी जाती थी, मैं उसके मकसद पर चलता था, वो किस तरह मुझे इस्तेमाल किया करता था, हालेलुया। जैसे ही उसे याद आया है, वो वापस आने लगा है, वो दूर से आ रहा है। वो खुदा की हुजूरी में वापस आने का क्या कर लेता है? अपनी उस गलती का क्या कर लेता है? इकरार कर लेता है। अपनी उस बदी का क्या कर लेता है? इकरार कर लेता है। जैसे वो अपने बाप के घर से बाहर निकला था, वो दूर जा चुका है अपने बाप से, उस घर से वो दूर निकल चुका है, उस गलती में जाकर ट्रैप हो चुका है, उस गुनाह में गिर चुका है, जो कुछ उसके पास था सब कुछ लॉस्ट हो चुका है। और गोया लग रहा ऐसे है कि ये मुर्दा है। कैसा दिख रहा है? मुर्दा है, इसमें जान बाकी नहीं है, ये मर गया, इसका ड्रीम मर चुका है, इसका मकसद मर चुका है। जैसे उसे याद आया कि मैं अपने बाप के घर जाना चाहता हूँ, वो उठा है। कुछ पल्ले नहीं है, कुछ पास नहीं है, पर एक इरादा है। उसने क्या किया है? इरादा कर लिया है, और उसने इस बात का इकरार कर लिया है कि मैं अपनी बदी का क्या कर लेता हूँ? इकरार कर लेता हूँ। चलना शुरू किया है, चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। जैसे बढ़ रहा है, बाप ने दूर से देखा, ओ मेरा बेटा है जिसे मैं तलाश कर रहा था, जिसको बचाने के लिए मैंने अपने बेटे को भेजा है, हालेलुया। वो दूर से देख रहा है, उसने निगाह की, ओ ये तो मेरा बेटा है। आप भी अपनी औलाद को दूर से पहचान लेते हैं, आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को हुजूम में पहचान लेते हैं। उन्हें मार्क्स भी लाया और फिर भी तो पता लग जाता है, हालेलुया। आपको पहचान है अपने बेटे की, अपनी बेटी की, अपनी औलाद की। खुदा भी आपकी फिक्र करता है। बाप ने दूर से देखा है और वो खड़ा हो गया है और अपने बाजू खोलकर इंतजार कर रहा है कि मेरे बेटे आ जा, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ, क्योंकि तुझ में जान बाकी है, तेरा मकसद अभी जिंदा है, तू मेरा बेटा है। और वो वापस आ गया, हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, और यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, हालेलुया। मुझे दूसरा माइक दीजिएगा, बंद हो रहा है, हालेलुया। सब जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप बरकत पा रहे हैं।
हालेलुया बोलिएगा। और जैसे ही बाप ने देखा है ये मेरा बेटा है, हालेलुया, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसके मकसद को मैं जानता हूँ। जब ये पैदा हुआ था मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे हाथों में खेला करता था, इसकी परवरिश मैंने की है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा खून खरीदा है, हालेलुया, ये मेरे खून से खरीदा हुआ, इसका मैंने फिदिया दिया है, हालेलुया। खुदा आपसे प्यार करता है मेरे अजीजों, खुदा आपको बचाना चाहता है, वो आपके मकसद को फौत होने नहीं देना चाहता। लोग शायद आपको कहें कि ये मुर्दा है, ये मर चुका है, ये जी नहीं सकता, ये खड़ा नहीं हो सकता, ये बहाल नहीं किया जा सकता, ये बचाया नहीं जा सकता। वो तोहमत लगा रहे अपने इसके साथ खड़े होकर और आपकी जिंदगी के मकसद को फौत कर रहे हैं, लेकिन आपको याद आया कि मुझ में जान बाकी है। वो लहू के वसीला से जो यीशु मसीह ने सलीब पर बहाया है, उसके खून बहाने के वसीला से मुझ में जान बाकी है। मेरे गुनाहों का कफारा हो चुका है, हालेलुया। मैं उसके लिए, उसकी खिदमत के लिए खड़ा होऊंगा, हालेलुया। फिर हुआ क्या है? जैसे ही बाप ने उसे देखा है, उसे गले लगा लिया है, कार चिल्ला पाता बाप ने मेरा बेटा वापस आ चुका है, हालेलुया। नौकरों को ऑर्डर दिया, जाओ भला हुआ बड़ा क्या करो, ज़िबा करके ज़ियाफत करना शुरू करो। उसने कहा वो कोट लाओ जो ये पहना करता था, इसकी स्टेटस को इसे वापस दो, ये किंग है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बादशाह बेटा और बेटी है, इसका वो लिबास वापस लाओ जिसे ये फेंक कर चला गया था, हालेलुया। बाप ने कहा इसका वापस ला लिबास। नौकरों को ऑर्डर लगाया, नौकर बाजरे ने ओदा लिबास ला बरे ने, केड़े कमरे च रहंदा सी, केड़े पलंग ते बैठा सी, केड़े तख्त ते बैठा करदा सी, ओदा सामान बाप ने संभाल के रखा है, ओदा इंतजार कर रहा, ओदा कमरा उंज ही सजाया होया है, कदों मेरा बेटा मेरी बेटी वापस घर आएगा, हालेलुया। बाप वाज वेटिंग फॉर यू गाइस, वो आपका इंतजार करता है, वो आपके मकसद को कभी फौत होने नहीं देता, हालेलुया। बाप इंतजार कर रहा है और उसने कहा इसका लिबास वापस ला। लिबास आया, उसके बाद उसने कहा अंगूठी मिलाओ, इसका इख्तियार इसे वापस दो, इसका इख्तियार इसे वापस दो। बाप ने उस बेटे का, उस बेटी का जो गुनाह के सबब से, जो गलती के सबब से, जो गुनाह में ट्रैप होने के सबब से अपनी आइडेंटिटी को खो चुका था, वापस आ गया है। और बाप ने कहा इसका लिबास भी वापस दो, इसकी अंगूठी भी इसे वापस दो। और जब उसके पांव पर नजर करता है कि इतनी दूर से नंगे पांव चलता हुआ आ रहा है, इसके पांव में जूती नहीं है, चलने के सबब से पांव भी लहूलुहान हो गए होंगे, उसके पांव से खून रिस रहा होगा। उसके बाप ने कहा इसे जूती पहनाओ, इसको अच्छी जूती वापस दो, इसके स्टेटस पर इसे क्या करो, वापस बहाल करो। और बाप ने खुशी की है। इंग्लिश वर्जन में पढ़े तो मैरिज लिखा हुआ है, वेडिंग लिखा हुआ है। प्यो ने फिर ओदी खुशी की थी, हालेलुया, मेरा बेटा मुझे मिल गया है, मैं गिर तो सकता हूं पर मैं उठ जाऊंगा। मीका क्या कहता है, मैं गिर तो जाऊंगा पर मैं, ऐ मेरे दुश्मन मुझ पर छाद में आना ना बजा, मुझ पर खुश ना हो, ऐ इब्लीस मुझ पर हंस मत, ऐ माशरे मुझ पर हंस मत, मेरी कलीसिया मुझ पर हंस मत, मेरे पादरी, मेरे पासबान मेरी गलती पर हंस मत। मेरा मकसद अभी भी मेरी जिंदगी में जिंदा है, बाकी है, मुझ में जान बाकी है, हालेलुया। आज अजीजो इकराम आपके लिए, वो आपको आज ये बात याद कराना चाहता है कि आप में जान, सब बोलेंगे मुझ में जान बाकी, जोर से बोलेंगे, कहेंगे मुझ में जान बाकी, हालेलुया। आप में जान बाकी है। दुनिया की नजर में तो आप मुर्दा हैं, आप गिर गए, गलती हो गई, पर बाप की नजर में आपकी अहमियत अभी भी बाकी, हालेलुया। वो बहाल करना चाहता है, वो रिस्टोर करना चाहता है, वो खड़ा करना चाहता है। अजीजों, आइए अपनी जिंदगी में अपने मकसद को देखते हैं। आप अपनी जिंदगी में गौर करें। खुदा के कलाम में लिखा, बस नजर करके तू कहां से गिरा है, बस नजर करके तू कहां से गिरा है। उसे याद आ गया उस बेटे को, मुस्लिम बेटे को, कि मैं डिग्या किथों, मेरे ऑर्डर ते तो लोग ही काम करते सन ते मैनू सूर फलियां भी नहीं खाते। हालत इतनी बुरी बाजुकात हमारे ईमानदारों की हो जाती है।
ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے مقصد سے گرتے گرتے اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ ہماری جو ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی بربادی ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر آپ میں سے کوئی ایسا، I don't know میں کس سے کلام کی باتیں شیئر کر رہا ہوں، I don't know جو آن لائن سن رہے ہیں ان میں سے میں کس سے بات کر رہا ہوں، آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ میں کوئی ایسا ہے جس کا مقصد گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ضائع ہو چکا ہے، آپ کا مقصد ایسا لگ رہا ہے کہ فوت ہو چکا ہے، آپ خدا سے دور جا چکے ہیں، ہاللیلویہ، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں۔